Welcome to all of you on Grow Strong. Dear students, today we will explore the facts about the theories of counseling, entitled as Directive Theory of Counseling. Directive approach of counseling is propounded by E.G. Williamson in 1950. He is being considered the father of directive counseling approach. Directive counseling is also known as counselor-centered counseling. It means problem is identified, discovered, and solution of the problem is found by counselor. In directive counseling, counselor is always active. The whole process of counseling revolves around the counselor, while as counseling is the passive. Counseling has to always follow the directions of the counselor. The directive counseling is also known as prescriptive counseling because its nature is prescriptive. In what sense it is prescriptive? Everything in the process of counseling is decided by the counselor. जैसे कि हम सब जानते हैं, जब हम बीमार पड़ते हैं, we have to go for the medical consultation, और हमें डॉक्टर के हिसाब से दवाई लेनी पड़ती है. We have to follow the prescription which is given by the doctor. And same is the case in case of directive counseling. Client is passive. Client has always followed the directions of the counselor. That is why it is known as counselor-centered counseling. Dear students, Williamson has given various steps which are involved in directive counseling. According to Williamson, each and every step of counseling are interconnected and interlinked with one another in an organized and systematic order. It means one step leads to the another step. The various steps which involved in the directive counseling, according to E.G. Williamson, are as under. Number 1, analysis. Analysis is the first step of directive approach of counseling. It means to investigate, to examine, or to study the problem. For example, problem has been investigated or examined by the counselor. Why learner is weak in studies? कि learner क्यों कमजोर है पढ़ाई में, ये problem है. Now counselor wants to solve the same problem. बच्चा पढ़ाई में क्यों कमजोर है? In analysis, the counselor will collect the information related to the problem from various sources like parents, teachers, friends and other society members. कि बच्चा किन के साथ उठता बैठता है, उनसे भी काउंसलर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, पेरेंट से भी कलेक्ट करेगा, टीचर से भी कलेक्ट करेगा. हर एक सब्जेक्ट टीचर से वो बच्चे के रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा.
दोस्तों से भी, जिन पीयर्स के साथ लर्नर उठता बैठता है, उनसे भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा. Dear students, according to Williamson, in analysis, both the informations are collected. Relevant information and irrelevant information. Relevant information वो information है which is truly connected with the problem. कि वो information जो problem के साथ सचमुच connected है. And irrelevant information is that information which is not anyway connected with the problem. लेकिन एनालिसिस में काउंसलर जो है वो दोनों इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करता है, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन भी और इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन भी. फॉर एग्जांपल, टेक इंटरेस्ट स्टडी में, द काउंसलर हैज कलेक्टेड द इंफॉर्मेशन अबाउट इंटरेस्ट्स ऑफ द चाइल्ड इन स्टडीज. हॉबीज ऑफ द चाइल्ड, बच्चे की हॉबीज क्या है. स्टडी आवर्स ऑफ द चाइल्ड, बच्चा कितने घंटे पढ़ता है, कि किन के साथ वो उठता बैठता है, बच्चे की पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, हैबिट्स ऑफ द चाइल्ड, फैमिलियल कंडीशंस ऑफ द चाइल्ड, चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप, सोसाइटी ऑफ द चाइल्ड, teaching and learning of the child. Teaching and learning in sense कि किस टीचर के पास कौन सा सब्जेक्ट बच्चा पढ़ता है. Attendance of the child, यानी कि punctuality of the child in the school, health status of the child, economical conditions of the child, overall familial background of the child. ये सब इंफॉर्मेशन कलेक्ट एक काउंसलर करता है एनालिसिस में. And after the analysis, second step involves that is known as synthesis. What is synthesis? To combine the information and to find the connections, meaningful connections which are associated or linked with the problem. And dear students, synthesis simply means to summarize the information, organize and summarize the information in order to give it a true picture. और इस प्रॉब्लम को समझने के लिए अब डेटा को समराइज और ऑर्गेनाइज करना है. Dear students, always keep it in the mind. In analysis, both relevant and irrelevant information is collected. But in case of synthesis में जो इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन है, कि इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन को एलिमिनेट किया जाता है. द इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, ये वो इंफॉर्मेशन है विच इज नॉट कनेक्टेड विद द प्रॉब्लम. तो उस इंफॉर्मेशन को एलिमिनेशन मेथड के जरिए पाइप आउट करता है, एलिमिनेट करता है काउंसलर. फॉर एग्जाम्पल, काउंसलर ने ये इंफॉर्मेशन की है कि बच्चा नॉटी है और उसे लगा कि बच्चा जिद्दी है. इट इज नॉट बाय एंड लार्ज रिलेटेड टू द लर्नर्स वीकनेस इन स्टडीज. तो इस इंफॉर्मेशन को इसने एलिमिनेट किया. एलिमिनेशन ऑलवेज सिंथेसिस में होती है, नॉट इन एनालिसिस. काउंसलर को यह भी लगा कि समटाइम्स चाइल्ड इज एग्रेसिव और कभी कभार एग्रेशन की वजह से ओवरऑल स्टडीज पे असर नहीं पड़ सकता है. यह भी काउंसलर को लगा कि ये इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन है, इसको भी अब उसने एलिमिनेट किया, रिजेक्ट किया. कि बच्चा गांव से आता है तो इस इंफॉर्मेशन को भी काउंसलर ने एलिमिनेट किया. कहा कि बहुत से बच्चे जो है वो टॉप करते हैं, कि ये भी कोई काज नहीं है कि चाइल्ड इज वीक इन द स्टडीज. रियल काज ढूंढने के लिए एलिमिनेशन करनी पड़ती है और वो एलिमिनेशन सिंथेसिस में होती है, जहां पर एक काउंसलर की इररिलेवेंट डेटा को एलिमिनेट करता है इन ऑर्डर टू फाइंड द ट्रू कॉजेज ऑफ द प्रॉब्लम.
कि कौन सा कॉज सचमुच प्रॉब्लम के साथ जुड़ा है। प्रॉब्लम इज हाईलाइटेड दैट वाई चाइल्ड इज वीक इन द स्टडीज। ये जरूरी नहीं है हमने यहां पर एक प्रॉब्लम ली है, कोई और भी प्रॉब्लम हो सकती है। देयर आर द इन्यूमरस प्रॉब्लम्स। ये हमने सिर्फ एजम्पशन के बुनियाद पे लिया है। एंड डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर द सिंथेसिस, थर्ड स्टेप इन्वॉल्व्स इन द काउंसलिंग, दैट इज डायग्नोसिस। Diagnosis simply means find out the cause and effect relationship. यहां पर हम आइडेंटिफाई causes को कर लेते हैं। It is the synthesis which leads diagnosis. For example, कि poor teaching is the cause of child is weak in the studies. अब यहां पर फंडामेंटल कॉज को काउंसलर ने आइडेंटिफाई किया कि बच्चा इसलिए वीक स्टडी में है क्योंकि जो स्कूलिंग है वो पुअर है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो सही नहीं है। दूसरा कॉज, बच्चे के घर में फैमिलियल कॉन्फ्लिक्ट्स है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स है, जिसकी वजह से बच्चे की स्टडी पे असर पड़ गया। इट इज द अनदर कॉज विच हैज बीन डायग्नोज्ड बाय द काउंसलर। अनहेल्थी रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट्स एंड द चाइल्ड, बच्चे और पेरेंट्स के दरमियान सही रिश्ता नहीं है, जिसकी वजह से बच्चे की जो स्टडी है वो असरजद हो गई है। चाइल्ड इज वीक इन द स्टडीज बिकॉज देयर इज अनहेल्थी रिलेशनशिप बिटवीन द पेरेंट्स एंड द लर्नर। कि बैड कंपनी, जो चाइल्ड है, बच्चा जो है, लर्नर जो है, ये अच्छे दोस्तों के साथ उठता बैठता नहीं है। दीज आर ऑल ड्रग एडिक्ट्स, वो वेगाबॉन्ड है और लोफर है, और उनकी भी वजह से दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ, आई मीन टू से यू, वाई चाइल्ड और लर्नर इज वीक इन स्टडीज। सो इन डायग्नोसिस सिंपली different, I mean to say you causes are identified which are responsible for the problem. And after the diagnosis, there is fourth step that is known as prognosis. Dear students, prognosis simply means to predict about the future consequences. जब हमने अब प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, उसके कॉजेज को आइडेंटिफाई किया, अब क्या होने वाला है इफ प्रॉब्लम इज नॉट ट्रीटेड। फॉर एग्जाम्पल, जब हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं या पेशेंट डॉक्टर के पास चला जाता है, तो डायग्नोस्टिक मैनेजमेंट ने कहा है, डॉक्टर ने कहा है कि पेशेंट को लंग कैंसर है, लिवर कैंसर है, स्किन कैंसर है, तो दिस हैज बीन डायग्नोस्ड बाय द डॉक्टर। और वो प्रोग्नोसिस में कहता है अगर सही वक्त पे इसे ट्रीटमेंट ना मिला, क्योंकि इस वक्त कैंसर जो है वो स्टेज फर्स्ट पे है, वी कैन कंट्रोल इट बाय गिविंग द कीमोथेरेपीज और मेडिकेशन टू द पेशेंट। अगर अब कीमोथेरेपी ना दी गई तो पेशेंट की डेथ हो जाएगी। देयर इज नो गारंटी और चांस फॉर द पेशेंट टू सर्वाइव। एंड सेम इज द केस विद हियर। जो लर्नर की प्रॉब्लम है, learner, I mean to say you client or counseling, he is weak or she is weak in the studies because due to the familial conflicts, because due to the unhealthy relationship between the parents and the child, because due to the poor teaching learning process. These are prominent causes which has been diagnosed. और प्रोग्नोस्टिकेशन में हम कहते हैं कि अगर इन कॉजेज को कंट्रोल नहीं किया गया है तो आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है, यू प्रिडिक्ट अबाउट द फ्यूचर। दिस prognosis is simply there the hypothesis making. Dear students, hypothesis means tentative guess related to the problem. For example, अगर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस सही नहीं की गई तो बच्चा जो है उसका ओवरऑल कैरियर आगे खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। अगर फैमिलियल कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व नहीं किए गए, अगर अनहेल्थी रिलेशनशिप बिटवीन चाइल्ड और पेरेंट्स के दरमियान कंटिन्यू रह गई, इससे ना सिर्फ उसका कैरियर ही बर्बाद हो सकता है बल्कि इट विल गिव बर्थ टू मोर प्रॉब्लम्स लाइक आइसोलेशन ऑफ द चाइल्ड, लाइक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ऑफ द चाइल्ड इन द फॉर्म ऑफ डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, सो ऑन एंड सो फोर्थ।
So it happens in the prognosis. As dear students, कि in बटमालू 2012 एक डॉक्टर ने एक लेडी को ऑलरेडी डायग्नोस किया था कि शी इज साइकोटिक लेडी, और प्रोग्नोस्टिकेशन में उसने उसके पति को कहा था कि इसे बच्चों के पास अकेले नहीं छोड़ना, और जब आप सोओगे और कमरे में कोई हथियार नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये उन हथियारों को नींद में भी यूज कर सकती है और ये किसी की भी जान ले सकती है. Doctor has already predicted about the behavior of the psychotic lady. And in 2014 कि वो जो पर्सन था उसका हस्बैंड, ही वॉज बाई प्रोफेशन मौलाना, बट मालूम है किसी मस्जिद में नमाज पढ़ाता था, तो इग्नोरेंस की वजह से वो नमाज पढ़ाने के लिए गया, और जब वापस आया उसके 2 बच्चे थे, एक 6 साल का था, दूसरा 4 साल का था, और वहां पर उसने क्या पाया वापस आके, दोनों की गर्दनें काट के थी. एक बच्चे की गर्दन एक जगह काट के थी, दूसरी की दूसरी जगह काट के थी. जब पुलिस ने अब इन्वेस्टिगेशन की एंड दे फाउंड कि जो ये मर्डर है, जो ये किलिंग है, ये उनकी अपनी मदर ने की, बिकॉज शी वॉज सफरिंग फ्रॉम साइकोटिक डिसऑर्डर. साइकोटिक डिसऑर्डर, यू नो दैट, वेयर द इंडिविजुअल इज डिस्कनेक्टेड विद द रियलिटी. हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स उन पेशेंट्स में होते हैं. False sensory experience like false auditory experience or videotory experience. Videotory experiences means कि आदमी सामने नहीं होता है लेकिन दिखाई देता है, या आदमी होता है, पर्सन होता है, लेकिन वो नॉर्मल स्टेट में है. वो साइकोटिक पेशेंट उसे फॉल्स तरीके से यानी कि इंटरप्रेट करता है, इसके जेब में छुरी है या पिस्टल है, ये मुझ पे हमला करने वाला है, तो वो उसे अचानक उस पर हमला बोल देता है, जिसकी वजह से जो यानी कि सामने वाला पर्सन होता है उसकी डेथ हो जाती है या उसमें वो जख्मी हो जाता है. एंड दोनों ये जो बच्चे जो थे, दे वर इन द डेप्थ ऑफ स्लीप, एंड ड्यू टू द फॉल्स सेंसरी वीडियोटरी एक्सपीरियंस कि फिर अपनी ही मदर ने दोनों बच्चों को किल किया. एंड हियर दैट मूड इशू इज प्रोग्नोसिस में ऑलरेडी अदरवाइज साइकोलॉजिस्ट ने, साइकेट्रिस्ट ने उसके यानी कि जो बच्चे हैं उनके बाप से ऑलरेडी कह के रखा था कि बच्चों को अकेले उसके सामने नहीं छोड़ना. एज डॉक्टर की डिजीज के रिलेटेड प्रोग्नोस्टिकेट करता है कि जो ये पेशेंट है ये स्टेज 3 में है, अब ये 10-20 दिन के बाद कि ऑटोमेटिकली इसकी डेथ हो जाएगी. एंड सेम हैपन्स, दिस इज नोन एज prognostication. In prognosis, we basically predict about the problem. यानी कि here that learner जो है, learner is weak in the studies, और उसके causes क्या है? उसके cause ये है कि poor teaching है, unhealthy relationship है. तो prognosis में कहते हैं कि अगर ये ठीक नहीं हो जाएगी तो इससे जो बच्चा है इसका ओवरऑल कैरियर जो है वो बर्बाद हो सकता है. And after the prognosis, there is 5th step, dear students, which is known as counseling. Counseling simply means now intervention or treatment services are started in order to solve the problem. अब treatment services start हो जाती है. अब काउंसलर की ट्रीटमेंट देगा related to the problem why child is weak in studies. For example, resolve the family issues. बच्चे की परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए काउंसलर अब की एडवाइस पेरेंट्स को देगा. इन ऑर्डर टू नाउ प्रोटेक्ट द कैरियर ऑफ योर वार्ड, यू हैव टू रिजॉल्व योर फैमिली डिस्प्यूट्स. जो घर में आपको प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स है इनको ख़त्म कर लो, अदरवाइज आपके बच्चे की तालीम जो है ये इसका कैरियर बर्बाद हो जाएगा. और काउंसलर ये भी कहता है कि जिस कंपनी के साथ ये उठता बैठता है वो सही नहीं है, वो भी चेंज करनी पड़ेगी. जो स्कूल में ये पढ़ता है दैट इज टोटली द पुअर इन टर्म्स ऑफ टीचिंग लर्निंग, तो बेटर है कि आप इसे किसी और अच्छे स्कूल में कि दाखिला दिखाओ. एंड समटाइम्स काउंसलर विल आस्क कि टू चेंज द होम एनवायरनमेंट और सोशल एनवायरनमेंट ऑफ द चाइल्ड फॉर द बेटरमेंट
of the learner. So this is known as counseling. जैसे कि हम सब जानते हैं कि अब डिजीज को ठीक करना, तो डिजीज को ठीक करने के लिए ट्रीटमेंट देना पड़ता है, मेडिकेशंस लेनी पड़ती है, कि क्लिनिक जाना पड़ता है जहाँ पर उस डिजीज को डिफरेंट मेडिकेशंस के जरिए ठीक किया जाता है. एंड इन काउंसलिंग ट्रीटमेंट सर्विसेज take place. So final setup in directive approach of counseling, that is follow-up. Dear students, follow-up simply means to check the impact of treatment. अब follow-up में treatment जो आपने already दिया है उसका impact देखते हैं. जैसे कि हमने किसी disease की दवाई खाई है, फिर follow-up में देखते हैं कि वो दवा जो है वो effective है कि नहीं, इससे इस डिजीज को ठीक किया है कि नहीं. एंड सेम इज द केस इन केस ऑफ डायरेक्टिव अप्रोच ऑफ काउंसलिंग. सो वन ऑफ द स्टेप्स दैट इज फॉलो अप. फॉलो अप में क्या होता है कि जो काउंसलर है वो इम्पैक्ट देखता है ट्रीटमेंट का, कि बच्चे का होम इन्वायरमेंट अब चेंज हो गया, क्या बच्चे की जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो गई कि नहीं, बच्चे को अब नए स्कूल में एडमिशन दिया जहां पर बेटर एजुकेशन है एज कंपेयर टू प्रीवियस स्कूल. नाउ वी विल सी इम्पैक्ट कि क्या बच्चे की परफॉर्मेंस वही है कि या इम्प्रूव हो गई है. अब जो बच्चा जो है वो अब उस कंपनी के साथ भी उठता बैठता नहीं है कि जिनकी वजह से उसका कैरियर जो है वो दांव पे लग चुका था. इन केस इफ देयर इज एनीथिंग pending, at that time counselor gives the treatment or to gives the retreatment related to the problem. अगर अभी भी कुछ कमी बाकी है तो फॉलो अप में उस प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए कि ट्रीटमेंट सर्विस या रिट्रीटमेंट दिया जाता है, so that we can overcome the problem 100%. जो ये प्रॉब्लम जो है ये 100% ठीक होनी चाहिए. और ये कहाँ पर हम देखते हैं? वी सी इट इन फॉलो अप, वायर काउंसलर चेक्स द इम्पैक्ट ऑफ ट्रीटमेंट. उसका ट्रीटमेंट इलाज सही हो गया है कि नहीं. इन केस ऑफ एनी इशू और कॉम्प्लिकेसी तो फर्दर ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ता है. डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट द directive theory of counseling. If you really enjoyed my lecture, kindly like, share and subscribe the channel.